میرا اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی۔ درابن میں جھڑپ کے دوران 7 دہشت گرد جہنم واصل، فائرنگ کے شدید تبادلے میں کوئٹہ کے میجر سبطین حیدر بھی شہید۔ آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر سبطین شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ اپنے لہو سے وطن کی آبیاری کرنے والے شہداء کو قوم کا سلام عقیدت۔ اورکزئی میں جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قوم دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے۔ شہداء کی قربانیاں مادر وطن کے دفاع کے عزم کی یاد دہانی ہیں۔ اورکزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 19 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ کارروائی کے دوران لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب سمیت پاک فوج کے 11 سپوتوں نے شہادت پائی۔ بھارت کے نئے نارمل کو پاکستان نئے نارمل کے تحت جواب دے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس کا سرحد پار دشمن کے اشتعال انگیز بیان پر 2 ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر کانفرنس کی شدید تشویش۔ کور کمانڈرز نے کہا، بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے، روایتی، غیر روایتی اور ہائبرڈ خطرات کا مقابلہ کرے گی۔ فورم نے مزید کہا کہ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی سرپرستی کے گٹھ جوڑ کو ہر صورت ختم کیا جائے گا۔ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان جیسے بھارتی دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مکمل آپریشن ہوگا۔ مسلح افواج ہر محاذ پر دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک سعودی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کو کور کمانڈرز فورم کی مکمل حمایت۔ کہا، سعودی عرب سے معاہدہ مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور خطے کے امن کی عکاسی ہے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ اسرائیل اور حماس نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ غزہ جنگ بندی کا اعلان آج متوقع۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، اسرائیل اور حماس نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے ہیں۔ تمام یرغمالیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج ایک متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائے گی۔ یہ منصوبہ پائیدار اور دائمی امن کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ تاریخی اور غیر معمولی معاہدے میں کردار ادا کرنے والے قطر، مصر اور ترکیہ کے ثالثوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ دن عرب اور مسلم دنیا، اسرائیل، تمام ہمسایہ ممالک اور امریکہ کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سمجھوتے کے تحت حماس تمام 20 زندہ یرغمالیوں کو 72 گھنٹے میں رہائی دے دے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہفتہ یا اتوار کو متوقع۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کو فون، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ نیتن یاہو نے کہا، آج حکومت کا اجلاس بلا کر معاہدے کی توثیق کرائی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کو اسرائیل پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت بھی دے دی۔ صرف معاہدے پر دستخط کافی نہیں، اسرائیل کو جنگ بندی سمیت تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد کا پابند بنایا جائے۔ حماس نے بھی امن معاہدے پر دستخط کی تصدیق کر دی۔ کہا، غزہ جنگ کے خاتمے اور قابض فوج کے انخلاء کا معاہدہ طے پا گیا۔ غزہ میں غزہ کی ترسیل اور قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ قطری وزارت خارجہ کی بھی تصدیق۔ کہا، معاہدے کی تفصیلات کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا، قیدیوں کا تبادلہ باعزت طریقے سے ہونا چاہیے۔ غزہ میں فوری طور پر امداد کی فراہمی شروع کی جائے۔ غزہ میں 2 سال بعد سیز فائر کا اعلان، فلسطین میں جشن کا سماں۔ جنگ بندی کی خبر کے باعث فلسطینیوں میں امید کی لو جلی ہے، مگر تباہ شدہ علاقے، ہسپتال اور سکول اور بے گھر خاندان توجہ کے منتظر۔ ماہرین کا کہنا ہے، فلسطینیوں کو اپنی زندگی دوبارہ تعمیر کرنے کا بہت بڑا امتحان درپیش ہوگا۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا خیر مقدم، انسانی امداد کے لیے رکاوٹیں ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ کو خراج تحسین۔
कतर, मिस्र, तुर्किया की क़यादत की कोशिशों की भी तारीफ। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, गजा मुआहिदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के क़याम का तारीखी मौका है। फलस्तीनी अवाम को खिराज तहसीन जिन्होंने बेमिसाल मुसाइब का सामना किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में कहा, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने के असूली मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। पंजाब और सिंध हुकूमत में सीज़फायर, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर रजामंद हो गए। नवाब शाह में सदर आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ्द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती वफ्द से कहा, अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते मामलात खराब हों। नून लीगी कमेटी की जानिब से कहा गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। मुलाकात में किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की इनिंग्स का खातिमा। वजारत आला से इस्तीफ़ा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भिजवा दिया। एक्स पर इस्तीफ़ा शेयर करते हुए लिखा, बानी के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। दहशत गर्दी के चैलेंज का डट कर मुकाबला किया। सूबे को माली इस्तेहकाम की जानिब गामजन किया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए। काबीना अरकान ने असम्बली और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रगुजार हूँ। सुहेल आफरीदी को मेरी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। हम बानी पीटीआई की रिहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। खैबर से ताल्लुक रखने वाले सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला नामजद। 2024 के इंतखाबात में पहली बार रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। वज़ीर आला गंडापुर के मुआवन ख़ुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सुहेल आफरीदी को वज़ीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। अरसा दराज तक इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहे। सुहेल आफरीदी पीटीआई की मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। औरंगज़ेब में फौज पर बड़ा हमला अली अमीन गंडापुर की छुट्टी की वजह बना। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने खैबर पख्तूनख्वा में फौज पर हमले पर दुख का इजहार करते हुए अली अमीन गंडापुर को इस सूरत हाल के जिम्मेदार करार दिया। बानी ने कहा, गंडापुर को वज़ीर आला के ओहदे पर मजीद नहीं रहना चाहिए। केपी में सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि काबू से बाहर है। अली अमीन को ओहदे से हटा देना ही बेहतर है। वफाकी हुकूमत का तरीक़ाकार गलत है। केपी हुकूमत खुद को इस पॉलिसी से दूर करे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ हैं। सब बानी की रिहाई के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत होगी। मुल्की सियासत में हलचल, तेजी से बदलती सूरत हाल पर बड़ी सियासी जमातों में राबते। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का इजलास कल होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिना तब्दीली और पार्टी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नवाब शाह में होने वाली मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और दीगर सूबों की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। सियासी लाहे अमल तय करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं की मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान और IMF में दूसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। IMF के एलामिये में पाकिस्तान की जानिब से कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त का एतराफ़। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। IMF के मुतालबे पर हुकूमत की ग्रेड 17 से 22 तक अफसरों के असासे जाहिर करने पर रजामंदी। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरमीम का मुसव्वदा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर गौर होगा। शुरा को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रेलवे तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत में मसरूफ। वकील हामिद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बच्चे सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और 1,70,000 जख्मी हैं। और कितने हैं जो मलबे के ढेर तले हैं। 2 साल मुसलसल बमबारी की है, बच्चों को टारगेट करके शहीद किया है कि ताकि हमारी नस्ल खत्म हो जाए। दुनिया ने इसराइल को लगाम नहीं दी तो ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं। जमात इस्लामी की ज़रिए तमाम रावलपिंडी में अक्सा मिलियन मार्च, बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, हमास का दफ्तर इस्लामाबाद में कायम किया जाए। हमास जमहूरी और मुजाहमती कुव्वत है। मुसलमानों को सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीन की बात करनी चाहिए। इसराइल अमरीका की हिमायत से हमले करता है। पाकिस्तान को खौफजदा होने के बजाय हमास का साथ देना चाहिए। शोबा सेहत में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा तरक्की के लिए निजी शोबे का फाल होना अहम है। निजी शोबा मुआशी तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। सिंध के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से कराची में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डोम की मुलाकात। सूबे की तवानाई पॉलिसी, जारी मंसूबों और बैनुल अक़वामी शराकत दारियों पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों पर तेजी से काम कर रही है। थरकोल पावर प्लांट्स, सोलर और विंड हाइब्रिड तवानाई मंसूबे और घरों की सोलराइजेशन प्रोग्राम अव्वलीन तरजीह है। सिंध कुदरती वसाइल से मालामाल है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा जारी है। सीनियर वजीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को तोहफ़े भी पेश किए। खांसी के शरबत से बच्चों की हलाकत पर भारत से जवाब तलबी। आलमी इदारा सेहत ने मोदी सरकार से वजाहत मांग ली। WHO ने इस्तफसार किया, जिस सिरप से अमवात हुई वो एक्सपोर्ट किया गया या नहीं। भारतीय तस्दीक के बाद कफ सिरप पर आलमी मेडिकल अलर्ट जारी करने पर गौर किया जाएगा। खांसी के सिरप से एक माह में 17 बच्चे हलाक हो चुके। बांग्लादेश का चीन से 20 J-10C तैयारे खरीदने का फैसला। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है, तैयारों की खरीदारी के मुआहिदे की मालियत $2 अरब 20 करोड़ होगी। तैयारों की खरीदारी, पायलट्स की तरबियत, तैयारों की देखभाल भी मुआहिदे का हिस्सा। हुकाम का कहना है, तैयारों की खरीदारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहिदे के तहत 2027 तक मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। एक और फलस्तीनी ने दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। फलस्तीनी नयाद अमरीकी साइंसदान उमर यागी को जापान और ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों के हमरा केमिस्ट्री के शोबे में नोबेल इनाम से नवाज दिया गया। 1965 में उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फलस्तीनी घराने में आग खोलने वाले उमर यागी का बचपन पनागज़ीनी, मेहनत और ख्वाबों की सरजमीन पर गुजरा। इब्तदाई तालीम उर्दन में हासिल की, फिर आला तालीम के लिए अमरीका का रुख किया। उमर यागी के इजाद करदा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से केमिस्ट्री के शोबे में इनकलाब बर्पा हो गया।